Hello students, welcome to chemistry classes. Ritu ma'am here. Students, now we will take hybridization and shapes of some compounds having sigma and pi bonds. ठीक है, तो यहाँ पर I am taking three examples. The first example in which there is only sigma bonds and it is ethane. The second example is ethene in which there is sigma as well as one pi bond, and third example is ethyne in which there is sigma as well as two pi bonds. So we will take them one by one. So the first is the ethane. Ethane, that is C2H6, and C2H6 means CH3CH3, right? So I have already told you that the sigma bond is formed by the end-to-end overlap. Okay, end-to-end overlap, or we can say that it is formed along their internuclear axis, right? And the pi bond is formed by the sidewise overlapping of orbital, or we can say it is formed by the lateral overlapping. Okay, so we have taken the example C2H6, that is ethane molecule. See, the electronic configuration of carbon is C6 is 1s2, 2s2, 2p x1, 2p y1 and 2p z0. Okay, or you can simply write 1s2, 2s2, 2p2. Okay, so this is the ground state. In this compound ethane, there is sp3 hybridization which is involved. So in excited state, this is the ground state, right? So for sp3, one electron from this 2s, it will jump to the higher one. So in excited state, what will happen? This is 1 and there will be 3, right? And these three sp3 hybrid orbital, these four atomic orbitals, they combine together and form sp3 hybridized orbital, right? And in this case, we have two sp3 hybrid carbon atoms. We have two carbon atoms, and each one is attached with 4 sigma bonds. They are attached with 3 hydrogen and 1 carbon here. So we will take its structure also. So there will be sp3 hybridization in this way, that is in excited state, one electron from the ground state, it will jump or promote to higher orbital, higher energy orbital, and they combine together, they mix together and form sp3 hybrid orbital, right? So we have this is one sp3 hybrid carbon atom, this is sp3 hybrid carbon atom, first carbon atom. We have two carbon atom, this is first carbon atom, and in the same way we will have the second one, right? We have one more carbon atom, and like this we have two, and they will overlap along their internuclear axis. This is the internuclear axis, and they will overlap in this way. This is sp3 hybrid for first carbon atom. This is again sp3 hybrid orbital of second carbon atom. I am writing second also of first, right? Okay, and we have 6 hydrogen, each carbon attached to 3 hydrogen atoms. So like this, hydrogen means the electronic configuration for hydrogen is very simple, 1s1, that means s orbital, like this, right?
case, this is sp3, 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 right? And this is the sp3, sp3 overlapping, right? And this is hydrogen atom, s orbital of H atom, right? And in this form we will get the shape like this. Okay, and every angle, each angle is 109 degree 28 minutes. So this is the final structure of ethane. It consists 1 2 3 4 5 6 7 sigma bond. There is 7 sigma bond because these are formed by the internuclear axis overlapping. ठीक है, along the internuclear axis, or you can say the end to end overlapping. That means sigma bond will formed, right? Now this is the simplest case. Now we will take the case of ethene, right? Ethene. We will take the case of ethene, in which in ethene there is, as we know, in ethene, this is second is ethene, structure of ethene. What is ethene? C2H4, right? We all know that is CH2 double bond CH2. So again, the ground state carbon 6, 1s2, 2s2, 2p x1, 2p y1. आप ऐसे लिख लीजिए, या फिर इफ़ यू वांट टू राइट इन द सिंपल वे, दैट इज़ 2p2, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट. बोथ आर करेक्ट. आप कैसे भी लिख लीजिए इसको, ठीक है. नाउ इन दिस फॉर्म अगेन, दिस इज द ग्राउंड स्टेट, राइट? एंड in excited state, what happened? This is the, I have already told you that in excited state, one electron from the S, it will jump to the next higher one. That means यहाँ क्या हो जाएगा? ये आपका हो गया यहाँ पे 2s, और ये आपका P में हो गया आपके 3. ओके. Now in this case, because there is one pi bond, ठीक है, डबल का मतलब क्या है? There is presence of one pi bond. तो ये कैसे बन रहा है, पहली चीज़ तो वो देखनी है हमें. यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व होगा वो होगा sp2, राइट? तो sp2 के लिए डेट मीन्स देर इज रिक्वायरमेंट ओनली वन s ऑर्बिटल एंड 2p ऑर्बिटल. डेट मीन्स sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल. These three orbital undergoes the sp2 hybridization. ठीक है, these undergoes the sp2 hybridization, and this is remaining, and it is the unhybridized p orbital. वन इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपने याद रखनी है कि जब भी आपका हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं, दे ऑलवेज फॉर्म द सिग्मा बॉन्ड, राइट? एंड जो भी आपका अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रह जाता है, जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, डेट विल ऑलवेज फॉर्म द पाई बॉन्ड. यानी पाई बॉन्ड जो बनेगा वो हमेशा विद द हेल्प ऑफ अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के से बनेगा, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बनेगा. जबकि जो आपका सिग्मा बॉन्ड है, इट विल ऑलवेज फॉर्म विद द हेल्प ऑफ hybrid orbital, with the overlapping of hybrid orbital with other atomic orbital, right? तो यहाँ पर जो आपका आ गया है, ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, एंड यहाँ पर आपका अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होगा, राइट? अब यहाँ से देखिए, ये मैंने कुछ ऐसे शो किया है, मैं आपको एक बार डायग्राम की फॉर्म में बता देती हूँ. दिस इज s, राइट? ये हमारा s हो गया, 2s हो गया. यहाँ पे हमारा ये p था, ये हमारा 2px था. देन ये हमारा 2py है, एंड दिस इज आर 2pz. तो यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन हुआ है, ये सिर्फ इन तीनों का हुआ है, ठीक है. और इसके ये कैसा रह गया? दिस इज अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल. और ये क्या हो गए हैं? दे आर द sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे ये,
they undergo the sp2 hybridization and form 3 sp2 hybrid orbital। और किस तरह का ओरिएंटेशन हो जाएगा, ऑलरेडी सारी चीज़ें आपको प्रीवियस वीडियो में बता दी हैं। तो यहाँ से इस तरह का यानी ट्राइगोनल बायपिरामिडल इनका इस तरह से ओरिएंटेशन या ज्योमेट्री हो जाएगी। तो ये हमारा हो गया sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, राइट। अब यहाँ से ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं, ये ध्यान रखना है, दे आर ऑलवेज, ये एंगल तो 120 होगा ही। जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है ये हमेशा जो हाइब्रिड ऑर्बिटल की ज्योमेट्री होती है उसके परपेंडिकुलर होता है, ये आपने ध्यान रखना है। अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो होगा इट इज़ ऑलवेज ओरिएंटेड परपेंडिकुलर टू द हाइब्रिड ऑर्बिटल। यानी ये कैसे होगा, ये तो देखिए हमारा हो गया, यहाँ पे हमारा बेसिकली ये एक प्लेन में है। कौन सी शेप है ये आपकी, दिस इज़ द ट्राइगोनल प्लेनर, राइट, दिस इज़ द ट्राइगोनल प्लेनर। और ये इस प्लेन के, ट्राइगोनल प्लेनर मतलब एक ही प्लेन है, ये इस प्लेन के कैसे होगा, परपेंडिकुलर। मैं आपको बता रही हूँ इधर करके कि कैसे होगा। ये देखिए, ये आपका ये, ठीक है, ये तो हमारा हो गया जो हाइब्रिड है, जो ऊपर मैंने बनाया बिल्कुल वही मैं बनाया है यहाँ पे। ये तो sp2 हाइब्रिड है। ये कैसे है, जो परपेंडिकुलर वाला है ये है ऐसे, ये ऐसे होगा, ठीक है, ये इस तरह से होगा। तो यहाँ से बेसिकली ये दिस इज अनहाइब्रिडाइज्ड विच इज परपेंडिकुलर। Now see we have 2 कार्बन एटम्स इन ईथीन एंड दोनों कार्बन का इसी तरह से आपका शेप होगा, जिसमें दोनों केस में एक एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होगा और आपका 3 जो ऑर्बिटल्स होंगे वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे और ट्राइगोनल फॉर्म में क्या होंगे, ट्राइगोनल प्लेनर फॉर्म में ओरिएंटेड होंगे। अब इनकी आपस में ओवरलैपिंग होनी है जिसके थ्रू फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड बनेगा। लेट्स सी, तो यहाँ पे बेसिकली आपका क्या हो गया है, सी वी हैव, देखिए जो आपका ईथीन है और जो आपका इथाइन है, दोनों की स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है और दोनों की स्ट्रक्चर ही ज़्यादा पूछी जाती है एग्जाम में। 2 मार्क्स का सेपरेटली एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये आपका फर्स्ट कार्बन है sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम, ठीक है, ये फर्स्ट वाला कार्बन है, फर्स्ट कार्बन। और इसी तरह से जो दूसरा होगा, तो जाहिर सी बात है जैसे हमने पिछले ईथेन में बताया था ना ओवरलैपिंग, बिल्कुल उसी तरह से ये वाला ओवरलैपिंग कर रहा है यहाँ पे। तो सिग्मा बॉन्ड तो वैसे ही बनेगा ना जैसे पीछे बताया है। ये सेकंड कार्बन है, ठीक है। अब ये जिस तरह से ओवरलैपिंग कर रहे हैं, यानी यहाँ पे कौन सी ओवरलैपिंग हो रही है, ये sp2 और sp2 ओवरलैपिंग हो रही है। यानी ये कैसी है, अलोंग द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो ये आपका सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, राइट। अब यहाँ पे मैंने भी आपको बताया था कि यहाँ पे इनके परपेंडिकुलर क्या है, ये अनहाइब्रिडाइज्ड भी है, राइट, ये अनहाइब्रिडाइज्ड वाला है आपका। ये क्या है, दिस इज द अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। ये सेकंड कार्बन का इसी तरह से फर्स्ट कार्बन में, दोनों में इसी तरह से हैं। तो यहाँ पे ये क्या करेंगे, दे विल फॉर्म द पाई बॉन्ड अनहाइब्रिडाइज। कैसे करेंगे, ये इस तरह से लिटरल ओवरलैपिंग करते हैं, ये ओवरलैपिंग होती है इस तरह से, इसको हम साइडवेज ओवरलैपिंग या लिटरल ओवरलैपिंग बोलते हैं, जो पाई बॉन्ड बनाती है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि 2 पाई बॉन्ड बनेंगे, पाई बॉन्ड एक ही है, ये तो लोब्स 2 हैं इसलिए इस तरह से दिखाना पड़ रहा है, बट दे फॉर्म द 1 पाई बॉन्ड एंड 1 सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, कार्बन कार्बन के बीच में जो है। अब यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, तो हाइड्रोजन कितने प्रेजेंट है, 4 हाइड्रोजन, एंड वी नो जो आपका इसका होगा वो क्या होगा आपका 1s1, तो दिस इज द s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन, वो यहाँ पे आपका ओवरलैप कर रहे हैं। इस तरह से, और अगेन आपका जो इस तरह से है, जब भी आपका जो s है वो तो आपका नॉर्मली सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा,
हाइब्रिड के साथ में कर रहा है, वैसे भी उसका तो साइडवेज होता ही नहीं है। तो यहाँ से ये हो गया, तो यानी ये आपका क्या बन गया, दिस इज आपका हाइड्रोजन एटम है, ये हमारा, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। यहाँ से मैंने आपको बता ही दिया कि ये आपका अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल था जिसके थ्रू पाई बॉन्ड फॉर्म हुआ है, ठीक है। यानी ये जो हमारा हो रहा है, ये हमारी ओवरलैपिंग हो रही है sp2 एंड s ओवरलैपिंग, जिसके थ्रू सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो यहाँ जो ये बॉन्ड बनेगा ये सिग्मा है हमारा, ये कौन सा बन रहा है, सिग्मा, और ये कौन सा बन रहा है हमारा, पाई बॉन्ड। अब अगर इसको मैं क्लाउड्स की फॉर्म में बनाऊँ, मतलब ये जो मैंने किया है ना, ये यहाँ पे जो शो किया है, इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। यहाँ पे एक प्लेन है, उसके आपके अबव द प्लेन भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, और नीचे भी है। यानी क्या मतलब है इसका, देखो ये कार्बन कार्बन हो गया, ये यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हो गया, सिग्मा बॉन्ड से अटैच है यानी सिंगल बॉन्ड है यहाँ पे, और यहाँ पे ये इस तरह का इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, दिस इज द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ठीक है। ये क्या है, तो ये यहाँ पे है आपका बेसिकली दिस इज पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये है अबव द प्लेन, ठीक है, और ये है पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड बिलो द प्लेन, दिस इज बिलो द प्लेन, राइट। तो वन अबव एंड वन बिलो, और एंगल तो हमें पता ही है कि एंगल क्या है आपका, एंगल यहाँ पे क्या है, एंगल बेसिकली यहाँ पे 120 ही होगा क्योंकि ट्रायंगुलर है। और ये आपका पूरा इस तरह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इस तरह से मैंने दिखा दिया इसको। अब यहाँ जो शेप आएगी, शेप देखिए, दिस इज कार्बन, दिस इज कार्बन, ये मैंने ग्रीन पेन से दिखा दिए हैं जितने भी आपके सिग्मा बॉन्ड है, दे ऑल आर द सिग्मा बॉन्ड विच आर ओरिएंटेड बाय 120 डिग्री टू ईच अदर। ये जो हमारे एंगल हैं सारे एंगल 120 पे हैं, ठीक है। और यहाँ पे अब ये जो पाई बॉन्ड बना है इसकी वजह से, यानी ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। डबल बॉन्ड मीन्स 1 सिग्मा एंड 1 पाई, तो यहाँ पे एक और बॉन्ड बिकॉज ऑफ द पाई बॉन्ड हमारा आ जाता है। तो दिस इज द फाइनल स्ट्रक्चर ऑफ ईथीन मॉलिक्यूल। तो ये हमारा क्या आ गया, दिस इज पाई बॉन्ड, दिस इज सिग्मा बॉन्ड। डबल बॉन्ड मीन्स 1 सिग्मा 1 पाई, single bond means 1 sigma. So this is the final structure of ethene molecule. This is ethene, right? I think this is clear to all of you. Now we will take the last one and it is the ethyne. तो इथाइन में क्या डिफरेंस आ जाएगा बेटा, देखो अभी इथाइन में क्या बचा है, इथाइन में क्या है आपके 2 पाई बॉन्ड होते हैं। जो इथाइन है उसमें बस ये डिफरेंस है कि यहाँ आपका एक था और वहाँ आपके 2 पाई बॉन्ड हो जाएंगे। इथाइन, इथाइन का मतलब एसिटाइलिन भी बोलते हैं, C2H2, यानी इसका मतलब है CH ट्रिपल बॉन्ड CH बनेगा हमारा, ठीक है। ये देखना है हमें कैसे बनेगा। अब अंडरस्टूड है, अगर 2 पाई बॉन्ड बन रहे हैं यानी यहाँ पे 2 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होने चाहिए। मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जो आपके सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो हमेशा हाइब्रिड ऑर्बिटल से बनेंगे, और जो आपका अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है वो पाई बॉन्ड को बनाता है। तो यहाँ पे कार्बन ले लीजिए, कार्बन अगेन 6, तो दिस इज 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz0, राइट। दिस इज ग्राउंड स्टेट। अगेन एक्साइटेड स्टेट में फ्रॉम 2s 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप कर जाएगा, तो दिस इज द एक्साइटेड स्टेट। इसमें क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ और यहाँ हो गए आपके 3। अब यहाँ पे बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन होगा आपका sp, तो ओनली 1s and 1p they will undergo the sp hybridization. These 2 orbitals only undergo the sp hybridization and there will be 2 orbitals. These 2 are the unhybridized p orbitals जो आपके हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, दे विल पार्टिसिपेट इन द, किसमें करेंगे, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन में, राइट। तो ये हो गया हमारा। नाउ अब sp बन रहा है, तो sp से अंडरस्टूड हो जाना चाहिए आपको क्या होना चाहिए यहाँ पे, sp का मतलब दिस इज लेट, दिस इज आपका ये हमारा 2s हो गया, फिर यहाँ पे हमारा दिस इज लेट, दिस इज हमारा ये हो गया 2px, फिर ये हमारा हो गया 2py एंड
दिस इज 2p z, राइट, दिस इज 2p z। तो इसमें आपका जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं सिर्फ ये दोनों कर रहे हैं, दे विल अंडरगो द sp हाइब्रिडाइजेशन। और यहाँ से क्या बना देंगे, ये शेप कैसी आती है, ध्यान है ना आप लोगों को, पहले बताया हुआ है, sp डैट मीन्स लीनियर, इस तरह से। दिस इज द sp 2sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, ये बन गए। अब यहाँ पे अगेन ये दोनों क्या हैं, दीज टू आर द अनहाइब्रिडाइज्ड, दीज टू आर द अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स, 2 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। अब जैसे कि मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई है कि जो इनका ओरिएंटेशन होता है अनहाइब्रिडाइज्ड का, वो कैसे होता है, इसके परपेंडिकुलर होता है। तो कैसे, अब दोनों के दोनों एक ही डायरेक्शन में परपेंडिकुलर नहीं हो सकते, तो जो परपेंडिकुलर भी होंगे वो एक दूसरे के भी परपेंडिकुलर होंगे, राइट। तो मैं ट्राई कर रही हूँ आपको समझाने की कि किस तरह का स्ट्रक्चर होगा उनका। तो लेट दिस इज, ये हमारा समझ लीजिए, दिस इज कार्बन, ये हमारा कार्बन है, दिस इज कार्बन, जो पिंक कलर से मैं बना रही हूँ, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन। और जो दो आपके होंगे वो कैसे होंगे, लेट्स सी, कि एक तो होगा इस तरह से, ठीक है, ये परपेंडिकुलर हो गया, और एक इसके भी परपेंडिकुलर, तो यानी इस एक्सिस पे, देखो दोनों की एक्सिस अलग ही हैं, ठीक है, ये आपका हो गया इस तरह से। तो यानी ये आपके क्या हो गए, ये हो गया आपका pz और ये हो गया आपका py, राइट। तो ये कैसे हैं, ये है अनहाइब्रिडाइज्ड, दिस इज अनहाइब्रिडाइज्ड। और पोजीशन कैसी है इनकी, परपेंडिकुलर टू द हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये एक प्लेन में है और वो परपेंडिकुलर है, राइट। अब यहाँ से लेट्स सी कि आपका इथाइन कैसे बनता है, इथाइन को देखेंगे हम। इथाइन लेना है हमने, लेट वी हैव दिस, सी दिस इज sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है, मैं अभी नेमिंग बाद में करूँगी। और यहाँ पे अगेन वन थिंग कि वी हैव 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, दो हैं हमारे पास, क्योंकि ये जो है दिस इज sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ फर्स्ट कार्बन, ठीक है, इसी तरह से दूसरे का होगा, ठीक है, दिस इज sp हाइब्रिड, एक्चुअली लिखना नहीं था मुझे क्योंकि स्पेस नहीं बचेगा, पर चलो लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं। तो ये आपका यहाँ से, अब देखिए इसके परपेंडिकुलर दो हैं, सेम इसका भी ऐसा ही है, राइट। और एक कैसे है, दूसरा एक और परपेंडिकुलर है हमारा, है ना, एक हमारा कैसा है, एक और परपेंडिकुलर है इस तरह से, राइट। अब इनका आप देखिए कि कैसे इनकी ओवरलैपिंग होगी, वी हैव टू चेक द ओवरलैपिंग। तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग होगी, दिस पी वाई, ये आपस में कर रहे हैं ओवरलैपिंग, राइट। और जो आपका दूसरे वाला है वो ओवरलैपिंग आपस में करेगा, कैसे करेगा, यहाँ पे ये आपका लिटरल ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड आपस में बनाएगा इस तरह से। सी आई थिंक दिस इज क्लियर, ये पाई बॉन्ड बना रहा है, और जो आपका मैंने अभी दूसरे वाला बताया है वो भी आपका पाई बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। ये अब पहले भी मैंने बताया, इसका मतलब 4 पाई नहीं बनेंगे, पाई दो वो आपका सिर्फ क्लाउड से जो एक वन अबव और एक बिलो बनता है, बट इसको हम वन ही कंसीडर करते हैं। जो ब्लू से शो किया है वो एक पाई है, जो ब्राउन से शो कर रही हूँ वो दूसरा पाई है, ठीक है। इस तरह से आपकी ओवरलैपिंग हो गई। और जो ये बीच में दिखाई है मैंने, ये क्या है आपकी, ये आपका कौन सा है, दिस इज sp ओवरलैप। अब नाउ यहाँ पे हमारे पास और क्या है, हमारे पास यहाँ पे हमारे पास है यहाँ पे
Yes, hydrogen. This is 1s of hydrogen atom. This is 1s of hydrogen atom, right? ये है आपका unhybridized p orbital, py orbital, right? This is unhybridized pz orbital, right? एंड इस तरह से आपका बन रहा है। ये हमारा, मैंने अभी आपको बताया है कि आप चाहे इसको मेंशन करना हो तो मेंशन कर दीजिए। ये यहाँ भी सेम आपकी वही चीज़ें हैं। तो यहाँ जो ओवरलैपिंग हो रही है ये है आपकी sp-s ओवरलैपिंग। दिस इज sp-s ओवरलैपिंग, जिसके थ्रू सिग्मा बॉन्ड बनेगा। sp-sp, इसके थ्रू भी सिग्मा बॉन्ड बनेगा। तो यानी कैसे बनेगा देखिए, दिस इज कार्बन, दिस इज कार्बन। ये तो हमारा sp-sp के थ्रू जो सिग्मा बॉन्ड बना है, और ये हाइड्रोजन जो sp और s के थ्रू बना है, राइट। अब दो हमारे क्या हैं यहाँ पे, दो हमारे इस तरह से पाई बॉन्ड्स बन गया। तो यानी ये आपके ये पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड और ये सिग्मा बॉन्ड, तो और ये तो सिग्मा और सिग्मा है ही। तो इस तरह से हमारे फाइनली बन जाते हैं। अगर मैं क्लाउड्स की बात करूँ तो यहाँ चारों तरफ से आपका क्लाउड रहता है, यानी इस तरह से आप शो कर सकते हैं। अदरवाइज़ उसको इतना भी छोड़ेंगे तो इट्स ओके, इतना ज़रूरी नहीं है वो वाला पार्ट। बट फिर भी अगर आप जानना चाहते हैं तो इस तरह से मतलब कम्प्लीटली एक क्लाउड वो रोटेट करता रहता है, क्योंकि सारे में ही हो गया ना, वो पूरा का पूरा इस तरह से रोटेट करता रहता है। ये आपका पाई क्लाउड है, अबव भी रहेगा और बिलो भी रहेगा, दोनों साइड में रहेगा, सर्कुलेट करता रहता है, ठीक है। ये सर्कुलर फॉर्म में होता है, इस तरह से आपका सर्कुलर फॉर्म में आपका रोटेट का मतलब कि यहाँ ये वाला भी है और ये वाला भी है, तो पाई क्लाउड बन जाता है। तो ये आपका फाइनली 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर थी। और जैसे मैंने बताया आपको कि ईथीन और इथाइन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये जो बीच का है ना, ये सिलिंड्रिकल शेप बोलते हैं आप इसको। दिस इज़ अ सिलिंड्रिकल फॉर्म जो पाई क्लाउड मैंने दिखाया है यहाँ, ठीक है। अच्छा, वन मोर थिंग कि बिकॉज इन ईथेन देर इज़ ओनली सिग्मा बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन, तो वो उसका जो आपका कहना चाहिए कि बॉन्ड लेंथ है वो सबसे ज़्यादा होती है, और जो उसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है वो सबसे कम होती है, क्योंकि उसको ब्रेक करने के लिए लीस्ट अमाउंट ऑफ एनर्जी का रिक्वायरमेंट है। जैसे ही दूसरा केस आता है आपका इथीन, बिकॉज वहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है और वहाँ पे सिग्मा के साथ में पाई बॉन्ड भी आ जाता है, तो उसको ब्रेक करने के लिए मोर एनर्जी विल बी रिक्वायर्ड, बट जो बॉन्ड लेंथ हो जाती है वो कम हो जाती है। एंड इन द लास्ट केस, दैट इज़ इन द केस ऑफ दिस वन इथाइन, यहाँ पे 2 पाई और 1 सिग्मा है, तो डैट मीन्स यहाँ पे मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है टू ब्रेक द बॉन्ड, और ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए। और जो इसकी बॉन्ड लेंथ होगी वो सबसे कम होगी, यानी सिंगल में बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा, फिर डबल में उससे कम और ट्रिपल में सबसे कम। और जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता चला जाएगा उतना ही ज़्यादा उसको ब्रेक करने के लिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जिसको हम बोलते हैं उसका रिक्वायरमेंट होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द कंपाउंड हैविंग pi bond and sigma bond. So student, I think this is clear to all of you. So thank you so much students.